Hello students, today I am taking class 8th, subject English, lesson number 8, unity and strength. In the previous video I have sent you lesson explanation of this lesson, and today we will going to start grammar part. It has given on page number 59, so you have to give adverb, and we have read about parts of speech, that is noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction. So today we will read about preposition and adverb. What is the meaning of preposition? Preposition is used before a noun or pronoun. मतलब preposition एक ऐसा word होता है जैसे under, above, to, from. ये एक ऐसा word है जो noun और pronoun के पहले use होता है और क्या show करता है? Is used before a noun or pronoun to show its relationship with other words in a sentence. एक sentence में जो noun है, pronoun है, उसका दूसरे word से क्या relation है, ये word show करता है preposition. Again I am reading. Preposition is used before a noun or pronoun to show its relationship with other words in a sentence. जैसे he jumped from the tree. Then we are living in this room. So in, from, to, above, under, ये सब क्या होते हैं? Preposition. जो position बनाते हैं ये बताते हैं. Second one, adverb. What is the definition of adverb? Adverb is a word that modify or describe a verb. मतलब adverb एक ऐसा word है जो verb को क्या करता है? Modify करता है, describe करता है. जैसे he runs fast. He sings loudly. तो ये जो ly word जब word के साथ जुड़ जाता है, that is called adverb. So we have to do page number 59, adverb grammar part, a point, that is from adverb from these adjective and write them in the correct cloud. मतलब यहाँ पर आपको adverb के लिए कुछ verb दी है और उसमें आपको इनको correctly use करना है. जैसे कहाँ पर ly लगाना है, कहाँ पर ily लगाना है, you have to use here. First one, polite. Polite, that is you have to use ly politely. You have to given two clouds. यहाँ पर ऐसे आपको सर्कल बनाकर दिया है. ly वाले जितने भी वर्ड हैं उनको आपको यहाँ लिखना है और जो ily हैं उनको सबको यहाँ लिखना है. So polite, that is ly. Happy, that is happily. happily. Remaining all you have to do. Then second है punctuate. Punctuate करना you know very well. Punctuate किस तरह से करते हैं? जैसे first, have you written your essay? अब यहाँ पर जो word दिया है that is first one have. First word capital है, it is right. Then second, written your essay. तो last one आपको क्या यूज करना है? क्वेश्चन मार्क. मतलब आपको इन सारे सेंटेंस में प्रॉपर तरीके से पंक्चुएट करके लिखना है. Then third one, C point, rewrite this sentence by adding the phrases. जो ब्रैकेट में फ्रेजेस दिए हैं उनको आपको यूज करके इसे फिर से लिखना है. जैसे फर्स्ट वन, ही सॉल्व द क्वेश्चन, ब्रैकेट में दिया है हिज कैलकुलेशंस वर एक्यूरेट. तो ये बहुत सिंपल सेंटेंस है जिसके बारे में बात हो रही है, जो क्वेश्चन सॉल्व करता है, क्योंकि उसके सारे क्वेश्चंस जो थे, कैलकुलेशंस थे, वो बहुत एक्यूरेट थे. सो ही सॉल्व द क्वेश्चन और आपको किस तरह से यूज करना है? एंड हिज कैलकुलेशंस वर एक्यूरेट. सेकेंड वन, दिस ट्रेन गोज टू चेन्नई, ब्रैकेट में दिया इट हैज डायरेक्ट रूट. तो इट जो वर्ड दिया है वो किसके लिए दिया है? ट्रेन के लिए. सो आप फ्रेजेस किस तरह से यूज करेंगे? द ट्रेन हैज डायरेक्ट रूट टू चेन्नई. So remaining all you have to do yourself. Then next one, page number 60 and 61 you have to do. Choose the correct naming words from the box. आपको इन बॉक्स से वन सेंटेंस बनाना है. जैसे one who studies animal, जो एनिमल की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट. देन सेकेंड one who treats diseases of the foot and heart, तो उसे क्या बोला जाता है? इस तरह से आपको यहाँ पर you have to take a dictionary, और आप उस तरह से एक लिस्ट जैसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जिसमें नेमिंग वर्ड्स आए कि किस जो ये वर्ड्स हैं, जैसे फर्स्ट वन है, सेकेंड वन है, इस तरह से ऑप्टिमिस्ट होता है जैसे आशावादी. तो इस तरह से कौन सा सेंटेंस यहाँ पर इसके लिए, जिस वर्ड के लिए सुटेबल है, उसे आपको लिखना है. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 8, unity and strength, and second one we have to start lesson number 9. Hello students, today I am taking class 8th, subject English, lesson number 9, and the lesson name is fair justice.
Before starting this lesson, I want to tell something that we have completed from lesson 1 to 8, and I have also sent you a PDF of question answers and grammar part also. And today we are going to start this lesson. This lesson is a story. There were two friends, they were best friends. और आपने नाम भी सुना होगा कभी उन फ्रेंड्स का, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। यहाँ पर ये जो दोनों फ्रेंड है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी पोजीशन पर रखकर फिर जजमेंट करते हैं कि ये इसकी पोजीशन पर सही था और मैं मेरी पोजीशन पर सही हूँ। कहने का मीनिंग ये है कि मान लीजिए जब आप आपके फ्रेंड को देखते हैं कि वो कुछ रॉन्ग कर रहा है और आपको आपके फ्रेंड का जजमेंट करना है, जज उसको मतलब आपको आपके फ्रेंड का जस्टिस करना है, तो अब आप फेयर करेंगे या अनफेयर करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। मतलब ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप उसको रॉन्ग मतलब प्रूफ करेंगे या फिर अपने फ्रेंड समझकर उसको अवॉइड कर देंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो जुम्मन शेख है, उनकी एक ओल्ड आंट थी और वो अपनी सारी असेट्स और प्रॉपर्टी और जो भी मनी वगैरह है, ज्वेलरी है, जो सब लेकर वो जुम्मन शेख के घर आ गई थी। कुछ समय तक तो जुम्मन शेख और उसकी वाइफ ने उनको बहुत अच्छा लुक आफ्टर किया, उनकी बहुत केयर की, बट आफ्टर सम टाइम वो उनको इग्नोर करने लगे। तो जो उनकी आंट है जुम्मन शेख की, उन्होंने कहा कि तुम मुझे पर मंथ अलाउंस दो। Allowance I have written on board, its meaning an amount that is given at regular interval। मतलब एक ऐसी अमाउंट जो किसी पर्सन को दी जाती है और एक रेगुलर इंटरवल में दी जाती है। जैसे 1 मंथ तो अगेन नेक्स्ट मंथ दी जाएगी, फिर नेक्स्ट मंथ, मतलब उसमें एक टाइम इंटरवल रहता है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो जुम्मन शेख है, उसकी आंट कहती है कि तुम मुझे पर मंथ अलाउंस दे दो और मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं रहूंगी, मैं मेरी खुद के जो भी है केयर मैं देख लूंगी। लेकिन जुम्मन शेख और उसकी वाइफ इस बात के लिए भी इग्नोर कर देते हैं और अवॉइड कर देते हैं उनकी बातों को। तो जो जुम्मन शेख की आंट है वो आपने सुना होगा विलेज में पंचायत होती है, तो उस पंचायत के थ्रू वो अपना जस्टिस लेना चाहती थी और उसे ये भी पता था कि पंचायत में अलगू चौधरी जो है वो एक पंच है। अब अलगू चौधरी और जुम्मन शेख देवर बेस्ट फ्रेंड, वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो जो जुम्मन शेख की जो आंट है वो अलगू चौधरी के जो उनकी थिंकिंग थी उनके बारे में समझती थी कि अलगू चौधरी कभी गलत डिसीजन नहीं देंगे, वो जो भी होगा वो फेयर जस्टिस ही करेंगे। और इधर जुम्मन शेख ने क्या सोचा कि पंच में जो अलगू चौधरी है वो मेरा फ्रेंड है, तो वो कभी मेरे अगेंस्ट जाएगा ही नहीं, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे फेवर में ही आएगा। तो दोनों पंचायत में जाते हैं। पंचायत में जब पांचों पंच में अलगू चौधरी जब बैठा होता है और उसके सामने जुम्मन शेख की आंट अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे पर मंथ जुम्मन के द्वारा एक अलाउंस दिया जाए, लेकिन जुम्मन शेख इसके लिए रेडी नहीं हो रहा है, वो मेरी बातों को अवॉइड कर रहा है। जब अलगू चौधरी ने देखा कि सचमुच जुम्मन की जो आंट है वो बहुत ही दुखी है और उनकी केयर नहीं कर पा रहा है जुम्मन शेख, तो अलगू चौधरी ने पहले तो ये सोचा कि ये मेरा फ्रेंड है और मैं इसके फेवर में मुझे जो भी डिसीजन है वो देना चाहिए। लेकिन जब उन्हें लगा कि आई एम सिटिंग ऑन द प्लेस ऑफ अ जज, मतलब मैं एक जज के प्लेस पर बैठा हूँ, तो मुझे जस्टिस कैसा देना चाहिए, फेयर, ना कि अनफेयर। क्योंकि यदि वो उसके फ्रेंड के फेवर में जो भी जस्टिस होता वो देते तो वो अनफेयर हो जाता। तो वो पंच की प्लेस पर बैठे होने के कारण वो फेयर जस्टिस करते हैं और अलगू चौधरी के द्वारा डिसीजन दिया जाता है कि जुम्मन शेख के द्वारा उसकी आंट को पर मंथ अलाउंस दिया जाए। लेकिन जुम्मन शेख को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब वो पंचायत की बात को अवॉइड तो नहीं कर सकता था, उसने उसकी आंट को वो पर मंथ अलाउंस देना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय के बाद दोनों की फ्रेंडशिप में भी थोड़ा सा एक डिस्टेंस आ गई थी, क्योंकि उसके फेवर में उन्होंने डिसीजन नहीं दिया था अलगू चौधरी ने। तो जुम्मन शेख अब कुछ न कुछ ऐसा एक टाइम ढूंढ रहा था या अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि जिससे कि अलगू चौधरी को उसका सबक सिखाया जाए, क्योंकि उसने उसको फ्रेंड होते हुए भी उसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया। क्या होता है, अलगू चौधरी के पास एक पेयर होते हैं बुल के, और जब वो किसी को सेल करता है तो सडनली क्या होता है कि उस पेयर में से एक की डेथ हो जाती है। अब जब वो डेथ हो जाती है तो वो जो एक पेयर में से जो एक रहता है उसे बोला जाता है कि तुम इसे ले जाओ और जो भी अमाउंट हो मुझे दे देना। लेकिन क्या होता है कि जब वो 1 मंथ उसका पूरा यूज कर लेता है, उसके बाद क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती है।
अब जब अलगू चौधरी जाता है कि मुझे मेरे बेलों के अमाउंट का जो भी रिटर्न करना था, पेमेंट करना था, मुझे दीजिए, तो वो मना कर देता है। वो पर्सन कहता है कि मैं वो अमाउंट नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे जो पेयर थे बेल के वो दोनों मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन अलगू चौधरी बोलता है कि 1 मंथ तो आपने उनका पूरा यूटिलाइज किया, उनसे पूरा काम लिया, उसके बाद उसकी डेथ हुई है, मतलब मेरे यहाँ से जब बेल गया था तब उसकी डेथ नहीं हुई थी। लेकिन वो पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो भी पंचायत में जाता है। अब सडनली जस्ट अपोजिट कंडीशन हो जाती है। जैसे जुम्मन शेख के टाइम अलगू चौधरी पंच में थे, अब यहाँ पर अलगू चौधरी के समय जुम्मन शेख पंच में है। तो अलगू चौधरी को लगा कि जैसे जिस तरह से मैंने इसके फेवर में डिसीजन नहीं दिया था, इसके अगेंस्ट दिया था, तो अब जो जुम्मन शेख है मुझसे क्या लेगा, बदला लेगा, एक तरह का रिवेंज हो जाएगा और वो मेरे फेवर में कोई डिसीजन नहीं देगा क्योंकि अलगू चौधरी सही था। लेकिन जब जुम्मन शेख को सारे जो स्टोरी थी वो बताई गई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, ये पूरा इंसिडेंट, तो जुम्मन शेख ने पहले तो सोचा कि अलगू चौधरी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, उस समय मेरे फेवर में डिसीजन नहीं दिया और अब मुझे इसके फेवर में नहीं देना चाहिए। लेकिन जब उसे फील हुआ इंटरनली कि मैं किसकी प्लेस पर बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द प्लेस ऑफ जस्टिस, मतलब मैं एक न्यायदाता की तरह इस प्लेस पर बैठा हूँ, तो मुझे फेयर जस्टिस करना चाहिए, ना कि अनफेयर। वो पूरी बात को सुनता है, उसके बाद उस पर्सन से कहता है कि तुम्हें इसका पेमेंट देना चाहिए, यू शुड गिव देम, बिकॉज जब उन्होंने उनको जो बेल दिया था उस समय उसकी डेथ नहीं हुई थी। तो फिर ये सब सुनकर अलगू चौधरी बहुत खुश होता है, दोनों फिर से वापस जैसे पहले फ्रेंड थे ऐसे ही फिर से बन जाते हैं। तो इस पूरी स्टोरी का सेंस यही है कि मान लीजिए जब आपको लगता है कि आपका फ्रेंड गलत है और आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, लेकिन आप फ्रेंडशिप को देखते हुए कोई डिसीजन मत लो, वो राइट है या रॉन्ग है, इस तरह से उसके डिसीजन को लेकर उसे या तो समझाइए, या तो वो गलत कर रहा है तो उसको डायरेक्शन लेस यदि हो गया है तो उसे डायरेक्शन पर लेकर आना ही सही फ्रेंडशिप होती है। So now we will come on comprehension part. It has given us page number 65, A part.